الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحام یا سید البہی والسراج المضی والکوكب الدری بارئ الخلائق وسکینہ المدفون بعرض مدینہ القاسم محمد بآواز بلند سلوات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ درود مل کے بلند آواز سے تلاوت۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ کوشش کرے کہ سب مل جانے ہیں۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا جو بھی بیمار ہے، بیماری کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہمارے آخری بادشاہ آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب ان کا ظہور ہو تو ہم سب کو ان کی آواز اور انسان میں شمار فرما۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے۔ اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے۔ اور مصرعے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے۔ آج 8 محرم منصوب مولا عباس۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، صرف اور صرف فقط مولا عباس کی چند جملے جو آپ تک پہنچا سننا چاہتے ہیں تو یالی ورنہ مولا عباس قیام حسینی میں آ رہے ہیں اجازت لے کر۔ میرے مولا عباس حسین کے پاس آ رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں؟ اس نے فرزند رسول مدنی کی خاطر، انتقام دل و جان حسنی کی خاطر، خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر، ان سب چیزوں کی خاطر مولا عباس آ رہے ہیں قیام حسینی میں۔ اس نے فرزند رسول مدنی کی خاطر، انتقام دل و جان حسنی کی خاطر، خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر، سرے میدان بغا بت شکنی کی خاطر، سرے میدان بغا بت شکنی کی خاطر کیا شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں۔ میرے مولا عباس نے کہا آقا حسین جنگ کی اجازت؟ میرے مولا نے کہا نہیں۔ کیوں؟ وجوہات بتائی، تاریخ بتاتی ہے 19 وجوہات میرے مولا نے بتائی کہ عباس میں تمہیں اس وجہ سے بھی اجازت نہیں دے سکتا، عباس میں تمہیں اس وجہ سے بھی اجازت نہیں دے سکتا، عباس میں تمہیں ایک وجہ میں بتاؤں گی۔ میرے مولا فرماتے ہیں عباس اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں۔ میرے مولا فرماتے ہیں عباس فتنہ ہو فتنہ گرو بزدل و اغیار کہاں، اور شان حلف حیدر کرار کہاں، اور شان حلف حیدر کرار کہاں۔ میرے مولا کہتے ہیں عباس میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو، اصغر کی ہنسی کی خاطر، فقط اور فقط اصغر کی ہنسی کی خاطر چھوڑ دو۔ مولا عباس کہتے ہیں جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا۔ یہ تھوڑا بیدار تو ہے۔ نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات۔ آپ لوگ کو دیکھ کے جناب میسا میں تمار ناراض نہ ہو جائے کہ میرے منہ میں زبان نہیں تھی، میں جب بھی علی علی کر رہا تھا، آپ کے پاس زبان ہے، آپ جب بھی علی علی نہیں کر رہے۔
अली वाले इतने खामोश अच्छे नहीं लगते, बोलते हुए अच्छे लगते हैं। अब्बास फरमाते हैं जिस सिमत से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा इन्हें मरना। अब्बास फरमाते हैं वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, कांपेंगे न गुजरेंगे अलम वाली गली से। वो खौफ बिठा दूंगा। मेरे मौला ने कहा जाओ अब्बास जाओ। अब्बास को इजाज़त मिली। अब्बास है क़याम हुसैनी से बाहर। अब इस मजमे में मुझे कोई आवाज़ दे ज़ैनब तो मेरे मुंह से कैसा सबसे पहला लफ्ज़ क्या निकलेगा? जी। अगर कोई बड़ा किसी छोटे को पुकारे तो छोटा एहतराम में क्या कहता है? जी। क्या कहता है? जी। मेरे मौला अब्बास, अब आप सुने क्या हुआ। अलमों वाला बादशाह क़याम हुसैनी से बाहर आया। फिर हुआ क्या? आसमां तक जो गई शेरे नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। अब्बास फरमाते हैं मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे इशरार? कहा जी मौला सुन रहा हूँ। लहजाए गैज़ में बोला ये हुसैनी जर्रार। अब क्या कह रहे हैं मेरे मौला अब्बास? मलकुल मौत मसला इनका ये है दुश्मनी में, अरे दुश्मनी में ये कई रोज से पल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। अब जैसी खबर मिली तो फिर क्या हुआ? ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर आया, मदहवासी में बिने सादे नहीं चिल्लाया, नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। अब सिपाही कहते हैं बिने साद अभी तो तू कह रहा था लड़ना है। अब इसमें लफ्ज़ है रुबा। रुबा के मीनिंग क्या होता है? लोमड़ी। रुबा के मीनिंग होता है लोमड़ी। लोमड़ी उसको तो सब जानते हैं कौन है। लोमड़ी हमेशा शेर से डरता है। अब अब्बास क्या कह रहे हैं? ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर आया, बदहवासी में बिने सादे नहीं चिल्लाया, नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। कहते हैं अभी तो तू कह रहा था अब्बास से लड़ना है। कहते हैं सर जिगर हाथ कमर और गले जाते हैं, शेर आता है तो रूबा चले जाते हैं। शेर आता है तो रूबा चले जाते हैं। मौला अब्बास आए। अब उस अरब का कानून होता था कि जब कोई आता जंगजू मैदान में आता सबसे पहले वो अपना तारुफ बयान करता, मैं कौन, मेरा बाप कौन, मेरा दादा कौन, मेरा परदादा कौन। अब अब्बास आए मैदान में। मेरे मौला ने एक निगाह दौड़ाई 9 लाख के लश्कर पे और ये कहते हैं कि तुम तो ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, आओ मुझसे सुनो मैं कौन, आओ मुझसे सुनो। अब्बास कह रहे हैं अय्युहन्नास दिले हैदर करार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ। अब्बास कह रहे हैं सूरमा सब शिकनो गाजी जर्रार हूँ मैं, आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं आज कोई सालार नहीं बना। करबला में आके इमरजेंसी में देखी हुसैन ने मुझे सालार नहीं बनाया। अब्बास कह रहे हैं आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। अब्बास ने कहा, अब्बास फरमाते हैं कि 9 लाख के लश्कर पर निगाह दौड़ा के कहते हैं आरज़ू है तो कोई हर्फ दुआ है, लेकिन इस लेकिन में सारा आरज़ू है तो कोई हर्फ दुआ है, लेकिन जो भी मोती है वो सच्चा है खरा है, लेकिन कोई मूसा कोई हारून वफ़ा है, लेकिन अब्बास फरमाते हैं आदम भी उसी के ख़जाने का मोती, नूह भी उसी के ख़जाने का मोती, उस ज़ात के ख़जाने में कमी जो कोई नहीं, कोई मूसा कोई हारून वफ़ा है, लेकिन कंज़े माबूद नगीनों से भरा है, लेकिन अब्बास फरमाते हैं कुल्ले ईमान इमाम अज़ली ने मांगा, मैं अकेला हूँ जिसे रब से अली ने मांगा, मैं अकेला हूँ जिसे रब से अली ने मांगा। अब उस मजमे में से आवाज़ आई कि तुझ खाली अब्बास को अली ने मांगा, क्यों, कैसे? गूंगों की औलाद है, बोलते हुए कुरान सवाल कर रही है कि कैसे मांगा। अब अब्बास कह रहे हैं, अब अब्बास बता रहे हैं अलगरस बहरे मुनाजात उठे दस्ते खुदा। अब्बास कह रहे हैं आओ तूने पूछा है तो सुन, अलगरस बहरे मुनाजात उठे दस्ते खुदा, सज गई बोलते कुरान की होठों पे दुआ, रुख तारीख़ उख़ुवत पे चढ़ा रंगे वफ़ा, बैत मौलूद हरम देख के कुदरत ने कहा, बैत मौलूद क्या मेरे मौला अली, बैत मौलूद हरम क्या मेरे मौला अली का घर। अब्बास फरमाते हैं बैत मौलूद हरम देख के कुदरत ने कहा क्या? अल्लाह की आवाज़ है अली मेरा दिल बन गया है, अब गरूर शब तारीख़ ज़रा मांद भी हो, 12 सूरज है जब इस घर में तो एक चांद भी। शाही वफा पर बुलंद तरीन सलवात।
में तो एक चांद भी, एक चांद। अब अब्बास फरमा रहे हैं हमारा घराना वो घराना है जिसको तुम जानते हो, तुम्हें पता ही नहीं हमारी मार्फत क्या है। अब्बास फरमा रहे हैं मेरे दादा हैं वली और मेरे बाबा हैं इमाम, मेरे दादा हैं वली और मेरे बाबा हैं इमाम, मेरे 2 भाई इमाम और भतीजा है इमाम, बाकरुल इल्म की सूरत मेरा पोता है इमाम, नस्ल की नस्ल घराने का घराना है इमाम। अब्बास हमारे नस्ल की नस्ल घराने का घराना है इमाम। अब्बास हमारे तुमने पहचाना ही नहीं बात अगर हक है तो पता ईद इलाही देगा, हजर इस्वत मेरे दावे की गवाही देगा, हजर इस्वत मेरे दावे की गवाही देगा। अब्बास फरमाते हैं मेरा घराना वो घराना है जहाँ से कुछ मांगो तो बंदा खाली हाथ नहीं जाता, जो एक मांग दो उसको 100 मिलता है। सर खुला है हमारा। अब उसी मजमे में से फिर कहा किसी ने जो मांगो मिलेगा, अब्बास ने कहा मिलेगा, कहा जो भी मांगो अगर ना मिला तो अब्बास आगा जलाल में। अब्बास कहते हैं क्या कहा शाह अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं, आप पूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। अब्बास फरमाते हैं शक के फंदे में गला डाल दिया, झूल गए क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गए। अब्बास कह रहे हैं क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गए। अब्बास कह रहे हैं मुझे इजाज़त नहीं मिली वरना मैं तुम्हें बताता कि सालार कहते किसे हैं, अलमबरदार कहते किसे हैं। अब्बास कहते हैं अगर हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे महशर सजा के मारूं, फलक का सूरज ज़मीन पे रख के फिर उस पर तुमको चला के मारूं, बना के करबो बला में खबर फलक की जानिब से आके। अब्बास फरमाते हैं अगर मैं चाहूँ तुम्हें मिटा दूँ, मिटा के फिर से बना के मारूँ। अब्बास फरमाते हैं चली अली में अली है मुझ में, मकीन सोचे कहाँ वली है, तुम एक अली से डरे हुए हो, मेरी कलाई में 2 अली, मेरी कलाई में 2 अली हैं। अब अब्बास कह रहे हैं अब्बास ने 9 लाख की लश्कर पे निगाह दौड़ाई और कहते हैं फ़कत सिर्फ 9 लाख का लश्कर है। अब्बास कहते हैं शिमर बुज़दिल सिपाही जोर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा, अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। इब्न ज़ियाद कहता है अब्बास ये 9 लाख का लश्कर एक कम है। अब्बास कहता है मुझे 9 लाख न सुना, अशहले ज़ीरा को होशियार कुचल डालेगा, इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डालेगा। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु से करा दी अली अली नारा हैदरी 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 बाबुल हवाइज बुलंद तरीन सलावत। अब्बास कहते हैं मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। ये कोई 9 लाख का लश्कर है, इसको मैं सिर्फ देखूंगा तो ये गज़ब हो जाएगा। सिर्फ 9 लाख का लश्कर है तो और मंगा। अब फिर क्या हुआ, ये बात सुन के पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज़ ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद ये नौहा ये दुहाई छोड़ो, वक्त है भाग निकलने का कलाई छोड़ो। भागने की तो खैर पुरानी आदत है, आप लोग बोले ना खामोश क्यों है, बोले ना भागने की तो पुरानी आदत है। अपने बस में नहीं हरगिज़ ये लड़ाई छोड़ो, अब ये फरियाद ये नौहा ये दुहाई छोड़ो, अरे वक्त है भाग निकलने का कलाई छोड़ो। कहने लगे अभी तो तू कह रहा था फिर लड़ना है, अब फिर भाग रहा है। कहते हैं गैज़ में आके जो तलवार चला देता है, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। आज 8 मुहर्रम मनसूख मौला दूसरा है काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी लगा। मेरे मौला सज्जाद से किसी ने कहा कि सज्जाद मेरे मौला सबसे दर्दनाक मंजर क्या था। अब्बास सज्जाद कहते हैं अशाम अशाम। क्यों? सज्जाद कहते हैं करबला से कूफा, कूफा से शाम, जिस भी जालिम का दिल करता वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के दूसरे हाथ से तमाचा
अब्बास, अब्दुल्ला गाजी, अपनी आवाज़ को खोलें, सकीना को पुरसा दें, अब्बास को ज़ैनब को पुरसा दें। बीबी को आपकी हाय बहुत पसंद है, सिर्फ फ़कत एक हाय, सिर्फ फ़कत एक हाय। सजाद कहते हैं जिस भी जालिम का दिल करता वो एक हाथ सकीना की जुल्फ़ों में डाल के दूसरे हाथ से सकीना को तमाचा मार के कहता अब बुला गाजी को, अब बुला अब्बास को, तुझे बहुत नाज था ना अब्बास पर, न जाने कितने नाज थे 4 साल की सकीना को अब्बास पर। तारीफ बताती है कि जब सकीना को तमाचा लगा इतनी बार उसने अपने बाबा हुसैन को नहीं पुकारा जितनी बार चचा अब्बास को पुकारा। मेरे मौला जनाब जाड़ा साहब लिखते हैं कि हर शहीद की शहादत का एक असर हुआ, फ़कत वो अब्बास है जिसकी शहादत के 4 असर। पहला असर किस पर हुआ? पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पर हुआ। यहाँ उनको पता चला कि अब्बास ने ज़ीन छोड़ दी, वहाँ उनके हाथ से खाली कूदे गिर गए ज़मीन पर, खुश्क जाम ज़मीन पर गिर गए, खुश्क जाम ज़मीन पर गिर गए। पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पर पड़ा। दूसरा असर किस पे पड़ा? भाइयों वाली बहनें बैठी हैं, बहुत नाज होता है अपने भाइयों पर। दूसरा असर किस पे पड़ा? जब अब्बास इजाज़त लेने आए ना ज़ैनब ने सिर्फ एक जुमला कहा, अब्बास क़द सबक़्त अमीरुल मोमिनीन, अब्बास मेरे बाबा अली ने मुझे कहा था मेरी कलाइयाँ चूम रहे थे। मैंने कहा बाबा मेरी कलाइयाँ क्यों चूमते हैं? अब्बास उस वक्त मेरे बाबा ने कहा था कि एक दफ़ा एक वो वक्त आएगा कि तुम्हारे इन हाथों में रस्सियाँ बांध दी जाएंगी। अब्बास तुम बहुत छोटे थे, अब्बास में तुम्हारी बड़ी जवानी को देखती गई, अब्बास में ये सोचती गई जिसकी तेरे जैसा भाई हो, किसकी मजाल वो ज़ैनब के हाथ में रस्स बांधे। अब्बास आज तू इजाज़त लेने आ गया ना, ज़ैनब को पता चल गया वो लम्हा दूर नहीं। दूसरा असर किस पे पड़ा? दूसरा असर जब ज़ीन छोड़ी अब्बास ने जब ज़ीन छोड़ी, मेरी बीबी को पता चल गया अब्बास ने ज़ीन छोड़ दी। ख़ैमे में आके अपना बुर्का उतार के कहती है बीबियों तुम्हारी ज़मानत मैंने ली थी चादर की, मेरा मश्क गिर गया, मैं ज़मानत वापस लेती हूँ। दूसरा असर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बाबा से बुलंद कुर्सा, वो बंदा मजलिस में आया ही नहीं जो हाय ना कर सके। बीबी को सिर्फ आपकी एक हाय चाहिए। करबला में वो हुआ जिसकी एक हाय भी बहुत छोटी है। दूसरा पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पर, दूसरा असर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर, तीसरा असर किस पर हुआ? अनीस लिखते हैं जब गश्त करबला में हुसैन अकेले रह गए ना, एक दफ़ा ख़ैमा हुसैनी से बाहर आके नहर अलक़मा की जानिब अब्बास की लाश की तरफ रुक करके कहते हैं अब्बास अफसोस कि तूने मेरी तन्हाई न देखी। अब्बास आज हुसैन अकेला है, अकबर जैसा जवान हुसैन के साथ नहीं, अब्बास जैसा बावफा भाई नहीं, असगर जैसा 6 महीने का बच्चा नहीं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा दोस्त नहीं। अब्बास आज हुसैन अकेला हो गया। पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पर, दूसरा असर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर, तीसरा असर इमाम हुसैन पर, चौथा असर किस पे पड़ा? चौथा असर तारीख बताती है, चौथा असर फ़ौज अशिया पर पड़ा। फ़ौज अशिया को जब पता चला कि अब्बास ने ज़ीन छोड़ दी है, उन्होंने नाचना शुरू किया और नाच के कहते हैं लूटो तबर्रुकाते अली ओ बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अब्बास नहर अलक़मा पर है, नहर अलक़मा के पास आकर उन्होंने मश्क भरने के बाद वो चले ख़याम हुसैनी से नहर अलक़मा 1 किलोमीटर का फासला। अब्बास बाज़ार की तरफ से गए, पहला बाजू बाज़ार में कलम हुआ, दूसरा उससे आगे पहला बाजू जब कलम हुआ कहते अकबर का सदका, दूसरा कलम हुआ का असगर का सदका है। जब मश्क छिप गई ना, अब्बास ज़ीन पर बुलंद हुए। सकीना ने कहा अम्मा फ़िज़ा मुझे मेरा मश्क दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर सकीना फ़िज़ा के हाथों पर बुलंद हुई, यहाँ भतीजी बुलंद हुई, वहाँ पर चचा बुलंद हुआ। ये आखिरी मुलाकात है सकीना और अब्बास की। उसके बाद अब्बास नहर अलक़मा पे सो गया, सकीना शाम चली गई, सकीना खुश्क होठ लेकर शाम चली गई और अब्बास नहर अलक़मा से वापस कर शहज़ादी आप तक कोई गम न